Hello once again. In part 1, we have seen chit chat of the poem Truth from your English textbook, My English Book 8. In this video, we are going to say its explanation. So, this is the page from your textbook. First, I will read the poem. Truth. Stick and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. Slant and curved, they fall, words to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. Pain from words has left its scar on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed. It's words that I remember. Now here the poem is written by Barry Waite, and in this poem the poet says that the physical injury caused by stick and stone will be eventually healed. But if someone says something very mean about us, it can cause us an injury which is like an injury caused by a sword. इस पोम में पोएट कहते हैं कि जिस्मानी ज़ख्म से ज़्यादा तकलीफ दे जहनी या जज्बाती ज़ख्म होते हैं जो किसी के अल्फाजों से लगते हैं। जिस्मानी ज़ख्म वक्त के साथ धीरे धीरे भर जाते हैं, पर वो ज़ख्म जो दूसरों के बुरे बर्ताव या उनके बुरे अल्फाजों से लगते हैं वो हमारे जहनो दिल पर नक्श हो जाते हैं और वो कभी नहीं ठीक होते हैं या भरते हैं। समझे? Let's see the first stanza. Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. Haunt का मतलब होता है डराना, परेशान करना. In the first stanza, the poet speaks about the pain caused by weapons and the hurt caused by harsh language. Stick and stones hurt us physically, but we get hurt emotionally by rude and harsh language. If someone hurt us with stones and sticks, it will break our skin. But if someone says harsh words, it will haunt us like a ghost that trouble us and our mind again and again. पहले बंद में पोएट कहता है कि वो ज़ख्म जो लकड़ी या पत्थर से लगते हैं इनसे सिर्फ हमारी हड्डियाँ टूटती है, लेकिन वो ज़ख्म जो अल्फाजों से लगते हैं उनका असर देरपा होता है, वो हमारे जहनो दिल पर नक्श हो जाते हैं। जिस्मानी ज़ख्म जिल्द पर नुकसान पहुंचाते हैं, पर अल्फाज के जो ज़ख्म होते हैं वो शैतान की तरह हर वक्त हमें डराते रहते हैं। ठीक है? नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टैंजा. Slant and curved, they fall, words to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. In the second stanza, poet says that objects like swords injure our bodies deeply. But the intense pain caused by the bitter words can also hurt equally. These words make us feel ashamed and embarrassed. दूसरे बंद में शायर कहना चाहते हैं कि तलवार से अगर कोई हम पर वार करता है तो वो पियर्स में चुभना, वो चुभते हैं, हमें अंदर तक चुभते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं। इसी तरह बैट से और ईंटों से अगर कोई हमको मारता है तो हमारे हड्डियों को लगता है, उससे भी हमें बेहद दर्द होता है, शदीद दर्द होता है। लेकिन जो वर्ड्स से हमें मारते हैं, अल्फाजों से जो हमें मार मारी जाती है, वो मार जो होती है वो हमें शर्मिंदा करती है, मोटिफाई, सबके आगे नीचा दिखाती है। इसीलिए वो ज़ख्म जो अल्फाजों से लगते हैं वो ज़्यादा शदीद और तकलीफ़देह होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेंजा. पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर. Cuts and bruises now have healed. It's words that I remember. In this stanza, the poet explains that the pain caused by harsh and bitter words and pain caused by physical injury both leave scars
One is on the mind and heart, the other is on our body. इस बंद में शायर कहते हैं कि दोनों ही चीज़ों से हमें ज़ख्म लगते हैं, भले वो अल्फाजों की मार हो या किसी हथियार से की गई मार हो, दोनों हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं और हमारे जिस्म पर ज़ख्म लगाते हैं. But the scars on our body will recover sooner or later. The scars on mind and heart do not let us forget the experience. ज़ख्म तो दोनों ही से लगते हैं और निशानात भी आते हैं, लेकिन जो जिस्म पर स्कार्स लगते हैं वो आज नहीं तो कल वो दूर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. लेकिन वो ज़ख्म जो हमारे ज़हनो दिल पर लगे हैं वो कभी भी ठीक नहीं होंगे. वो हम हमेशा याद रखते हैं कि कौन से शख्स ने हमारा दिल कब दुखाया था. ये इंसानी फितरत है कि कोई शख्स हमें कितना ही अच्छे से हमारे साथ बर्ताव करे, सुलूक करे, अच्छे से रहे, लेकिन अगर एक गलती उससे हो जाती है या किसी एक मौके पर वो आपका दिल दुखाता है तो हम वो तमाम चीज़ें भूलकर वो एक चीज़ याद रखते हैं. तो ये एक ह्यूमन फिनोमेना है कि हम अक्सर बुरी चीज़ों को या किसी ने हमारा दिल दुखाया है उसको हम भूलते नहीं हैं. सो द मैसेज गिवन इन दिस पोएम इज़ दैट वी शुड स्पीक ट्रुथ. हमको हमेशा सच बोलना चाहिए. बीइंग ट्रूथफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ट्रूथ जनरली इज़ बिटर. तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन सच अक्सर कड़वा होता है. Therefore, if we have to speak the bitter truth, it should not be spoken in harsh and insulting way because it hurt the other person and he will feel bad. तो ऐसा सच जो कड़वा हो, सामने वाले को उससे तकलीफ़ हो, तो ऐसे सच को बोलते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे अल्फाजों का ध्यान इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सामने वाले को सच्चाई भी पता चल जाए और उसे बुरा भी ना लगे. We must speak the truth but in a good way with mild and polite language. हमारी जो लैंग्वेज हो, जो बोलने का तरीका हो, वो माइल्ड और पोलाइट होना चाहिए. नर्म लहजे में सामने वाले से सच्चाई बताई जाए और कोशिश की जाए कि जब हम उसको इस तरह की बातें करते हैं तो उसको अकेले में लेकर उससे बात करें, सबके सामने उसकी कमियां, उसकी गलतियां ना गिनाएं. इससे सामने वाले पर भी असर पड़ेगा, वो आपकी बात सुनेगा और उसको ये बात का यकीन होगा कि आप उसके खैर ख्वाह हो. ठीक है. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द मैसेज, मेन मैसेज ऑफ दिस पोएम. थैंक यू.